So this is facilitation, convention on facilitation of international maritime traffic. Okay, where is the drawing? Draw. So green color use कर लेंगे. Okay. So सीधा बढ़ते हैं. We will forget the convention. इसको भूल जाएंगे हम. ये क्या है? Articles को रहने देते हैं. Articles से मतलब नहीं है. We will straight away come to the convention itself. ये convention क्या कहता है? ये है आपका. यहाँ से स्टार्ट होता है. ये जो annex है इसमें, ये बाकी तो सारे articles है. आर्टिकल को हो गया इन विटनेस वगैरह, सो एंड सो पीपल हैव साइंड इट, और उसका जो एनेक्स है ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्शन 1 जो है दैट डील्स विद द डेफिनेशंस. ठीक है, दैट्स डीलिंग ओनली विद द डेफिनेशंस. फॉर दिस पर्पस दे हैव सेड कार्गो क्या होता है, क्रू इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. राइट, सो कार्गो मीन्स यहाँ पर देख लीजिए आप, एनी गुड्स, एनी वेयर, मर्केंडाइज, एनी व्हाटसोएवर. जैसा हेग रूल्स में डिफाइन कर रखा कि गुड्स क्या होते हैं. राइट, except other than mail, ship stores, ship spares, ship's equipment, crew effect, passenger, accompanied baggage. इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ, any goods, ware, merchandise and articles of every kind whatsoever is carried on ship is for commercial purposes. Ship's mail, ship stores, spare parts, ship's equipment, crew effect, passengers का जो accompanied baggage है, is not. Crew effect मतलब आपके जो कपड़े हैं, the items which you use for your daily this thing, including currency which is belonging to the ship and carried on the ship, ये crew effects है. Then crew member कौन होता है, cruise ship किसको बोला जाता है, what is meant by embarking of passengers, disembarking of passengers, loading or discharging of cargo, mail क्या है. So these are all definitions. Passenger in transit, accompanied baggage, public authorities, ship owner, सबको define कर रखा है. Ship's equipment, right? So these are the definitions में आ जाता है. Shore leave, for example, shore leave, permission for crew member to be ashore during the ship stay in port within such geographical or time limits, if any, and this may be decided by the public authorities. So time of arrival क्या होता है, when the vessel comes to rest either in port or at anchorage. Okay, so these are general. Now मैं जो खासकर आपके जो questions आते हैं उस पर देख रहा हूँ. Section 2 में arrival of the ship, stay of the ship and departure of the ship. What all documents are required by public authorities? So सबसे पहले तो है, the documents in question are the general declaration, cargo declaration, ship stores declaration, crew effect declaration, crew list. Right, passenger list अगर passengers हैं, document required under the universal postal अगर mail है तो, and maritime declaration of health. Now these are the documents which are generally required on arrival of the ship. अब डिक्लेरेशन में जैसे कार्गो डिक्लेरेशन है, अब कार्गो डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखना है, क्रू लिस्ट में क्या क्या जाएगा. जैसे नॉर्मली क्रू लिस्ट में क्या जाता है, जहाज का नाम जाता है, लास्ट पोर्ट एंड पोर्ट ऑफ अराइवल, ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ द क्रू मेंबर, उसकी रैंक, उसकी डेट ऑफ बर्थ, देन उसका आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और व्हाटएवर, सीडीसी, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी या डेट ऑफ एक्सपायरी. सो कंटेंट्स हर का अलग अलग होता है. जनरल डिक्लेरेशन का कंटेंट अलग होगा, कार्गो का अलग होगा, क्रू लिस्ट का अलग होगा. ठीक है, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर व्हेन द शिप अराइव्स. सो कन्वेंशन, एनी डॉक्यूमेंट अदर देन दीज कवर्ड बाय द प्रेजेंट. यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू रीड दिस वन, पब्लिक अथॉरिटीज शैल नॉट रिक्वायर for their retention on arrival or departure of ships to which the convention applies any document other than those covered by the present section. So सिर्फ ये document चाहिए for the arrival of the vessel. Okay, then contents for the purpose of documents. तो जैसे जनरल डिक्लेरेशन है, जनरल डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, name of the ship, nationality, the principal name of the master, name and address of the agent, here number of crew, passengers, brief particulars of the voyage, port of arrival, port of departure. This is the general declaration.
and this general declaration is signed by the master or the agent, जो भी authorized है to sign it. Right? So now if we listen to this, public authorities shall accept a general declaration dated and signed by the master, the ship's agent, or some other person authorized to sign it. And this is the content of the general declaration. तो सबसे पहले जो हमने देखा था, यहाँ पे जनरल डिक्लेरेशन है, कार्गो, शिप स्टोर्स एटसेट्रा. तो ये जनरल डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है. 2.3 ये जो है स्टैंडर्ड, द कार्गो डिक्लेरेशन पावर है, shall be a basic document on arrival and departure providing information required by the public authorities relating to cargo. Right? अब कार्गो के लिए क्या चाहिए? On arrival and on departure. In cargo declaration, public authorities should not require more than the following information. On arrival पे name of the ship, name of the master, port arrived from, and port where report is made. क्या कार्गो है, बिल ऑफ lading, ये सब आपको पहले ही भेज दिया जाता है एजेंट्स को. ओरिजिनल पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, बिल ऑफ lading, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, ये सब पहले ही एजेंट को मिल जाती है. But these are the documents which are required for cargo. On departure also, name of the ship, master, port, cargo loaded, bill of lading, quantity loaded, etc. Now, in respect of the cargo remaining on board, public authorities should require only brief details of minimum essentials of the information to be furnished. And again, they should accept a cargo declaration which has been signed by the master, ship's agent, or any person authorized by the master. Okay, this is your normal cargo declaration. Then let's come to the 2.4 जो है ship stores declaration. ये आपका है 2.4. शिप स्टोर डिक्लेरेशन के लिए 2.4.1 पे क्या बोल रहा है? द पब्लिक अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट शिप स्टोर्स डिक्लेरेशन डेटेड एंड साइंड बाय द मास्टर और बाय द पर्सन ऑथराइज्ड. जो भी आपके पास शिप स्टोर्स हैं जो आप डिक्लेयर कर रखे हैं, दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटीज. सेम वे क्रू इफेक्ट डिक्लेरेशन shall be a basic document providing information required by public authority relating to cruise effect, and it is not required on departure. खाली arrival पे चाहिए. ठीक है. Then इसमें 2.5 crew effect declaration shall be dated and signed by the master or person authorized to. Public authorities may also require each crew member to place his signature. नॉर्मली क्रू इफेक्ट में क्या होता है, आप लोग भी साइन करते हो, एक शीट होता है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन एंड मूव्ड अराउंड. सब लोग उसमें भरते हैं, स्मोक रूम में रख देते हैं, अपना अपना भरते हैं, और अपना भरने के बाद उसके साइड में साइन कर देते हैं, एंड देन द एंटायर थिंग इज साइंड बाय द मास्टर. ठीक है. सो डिक्लेरेशन. Recommended practice क्या है? That public authorities should normally require particulars of only crew effects which are dutiable and subject to prohibitions or restrictions. कोई ऐसा ड्यूटेबल आइटम है तो उसकी वैल्यू भी डालनी पड़ती है ना. समटाइम्स व्हेन यू कम टू इंडिया, आप बोल रहे हो मेरे पास घड़ी है, उसकी वैल्यू ये है या वट एवर, आपको लिखना पड़ता है. Then we are coming to crew list, number 2.7, crew list. Then public authorities को क्या क्या चाहिए क्रू लिस्ट में? They should not require more than the following information. क्रू लिस्ट में name and nationality of the ship, family name, given name, nationality of the crew, rank या rating, date and place of birth, identity document जो है passport, CDC, port of arrival and arriving from, port and date of arrival. So this is the only information which is required in the crew list. Okay.
अब कितनी कॉपीज चाहिए हर एक की वो भी अभी देखेंगे आगे आके. And crew list again signed by the master or authorized person is acceptable. Same way 2.7 is for passenger list. ठीक है, passenger list में क्या क्या चाहिए? These are the items: name of the ship, family name, given name, nationality, date of birth, place of birth, port of embarkation, port of disembarkation, port and date of arrival of the ship. Okay, again signed by the master. Right, sir. And 2.8 में public authority on departure. Now this is regarding departure. Shall not require on arrival or departure of the ship any written declaration in respect of mail or this thing. Mail वेल के यूनिवर्सल पोस्टल है उसके लिए कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. Now 2.9 आ जाता है आपका स्टैंडर्ड मैरिटाइम डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ. Shall be the basic document providing information required by port health authorities relating to the state of health of the crew members on board जो भी हैं during the voyage and arrival at port. So खाली health declaration. Okay, coming to the documents which are required on arrival. कितने किसकी कितनी कॉपीज चाहिए. So ये आपका एक क्वेश्चन होता है. List the documents which are required upon arrival or departure of the ship. So general declaration चाहिए 5 copies. Then cargo declaration 4 copies, 4 copies of ship stores, 2 copies of crew effect, 4 copies of crew list, 4 copies अगर passengers हैं उनकी, 1 copy of the maritime declaration of health. So these are the documents required by the public authorities upon arrival. Upon departure, again general declaration, cargo चेंज हो जाएगा. शिप स्टोर्स डिक्लेरेशन हो सकता है कि आपका कुछ बॉन्डेड स्टोर्स वगैरह या कुछ स्टोर्स आए हैं, स्पेयर्स आए हैं कंपनी से. क्रू लिस्ट, क्रू चेंज हो सकता है तो उसकी एक नई लिस्ट बन जाती है. पैसेंजर लिस्ट, ठीक है. सो व्हाट एवर द चेंजेस हैव टेकन प्लेस, क्रू साइन ऑन साइन ऑफ, स्टोर्स डिक्लेरेशन, स्पेयर पार्ट्स रिसीव फ्रॉम द ऑफिस, बंकर्स, हेवी ऑयल, डीजल ऑयल रिसीव, और प्रोविजंस, बॉन्डेड स्टोर प्रोविजन जो लिखा है अगर उस पर है तो देन ऑल दैट इज टू बी मेंशन्ड. यूजुअली क्या है ना कि दे व्हाट दे वांट, देयर शुड बी अ सिंगल विंडो. सिंगल विंडो मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए डिमांड ना करें. अलग अलग पोर्ट में जा रहे हैं आप, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, वो ख़त्म हो जाए. So that everyone follows the same system. इसको नॉर्मली लेट्स से अगर आपने उस पर डाल दिया इंटरनेट में या एक सिंगल पॉइंट पर डाल दिया एजेंट ने, आपने सारी कुछ एजेंट को भेज दी, एजेंट ने उसको इंटरनेट में या पोर्ट इंटरनेट पर डाल दिया, सो दैट जिसको भी चाहिए वो, जिसको जो चाहिए वो इंटरनेट से निकाल ले. दिस इज द शिप व्हिच इज कमिंग हियर. ये उसका जनरल डिक्लेरेशन है, ये क्रू है, ये क्रू लिस्ट है, वो क्रू लिस्ट अपलोड कर दिया. स्टोरेज है तो स्टोरेज डाल दिया, जो भी है सब अपलोड कर दिया, और जिसको जो चाहिए वहां से उसने निकाल दिया. सो 1 पॉइंट एंट्री, एंड जिसको जो चाहिए, बिकॉज एवरीबडी नोज कि दैट पर्टिकुलर शिप इज कमिंग इनटू पोर्ट, तो सबने अपनी इंफॉर्मेशन एडवांस पे ही दे ली. सो नाउ अ न्यू कार्गो डिक्लेरेशन, ये जो डिपार्चर के टाइम की बात कर रहे हैं. A new cargo declaration should not be required on departure from a port in respect of cargo which has been subject of a declaration on arrival and which has remained on board. मतलब इन ट्रांजिट कार्गो जो है वो आपने डिक्लेयर तो किया, इतना हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इतना ऑन बोर्ड है. जो इन ट्रांजिट वाला है उसके लिए सेपरेट वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू डिक्लेरेशन की. ओके, अब एक ये है आपका क्वेश्चन जो आता है अगेन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लियरेंस, इनवर्ड क्लियरेंस, कार्गो के लिए, क्रू बैगेज के लिए.
ये एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, यहाँ पे शायद एक लिस्ट दी है नीचे। कहाँ गया, एक मिनट है। ऑलराइट, चलो इसी में आते हैं। So measures to facilitate clearance of cargo, passengers, crew and baggage. So recommended practice क्या है? Public authorities should, with the cooperation of the agents or ship owners, take appropriate measure to end that port time may be kept to a minimum and should provide satisfactory port traffic flow arrangement. In other words कि जितना भी कम टाइम लगे, जितना भी फास्ट हो जाए प्रोसेस, they have to facilitate this. Recommended practice: public authorities should, with the cooperation of ship owners and administrators, port के जो हैं, take appropriate measures to the end that satisfactory port flow arrangements are provided, so that handling of cargo procedures will be smooth and uncomplicated. Anyway, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर, मैं सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स विच आर देयर फॉर अराइवल एंड डिपार्चर विच आर रिक्वायर्ड। एक क्वेश्चन वो आता है, ये वाला आपके पास है, आपके नोट्स में है? सर अप्रैल बैच को नहीं मिला सर। हाँ जी, हम लोग को नहीं मिला अप्रैल बैच वाले। नहीं, अप्रैल बैच का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। See, I have been only asked to do law for the Feb batch इस week के लिए because Captain Sojinda is not here. For मार्च के साथ या अप्रैल के साथ जो होगा वो कैप्टन सोजेंडा विल कम बैक एंड टेक द टॉपिक अगेन, क्योंकि आपको मालूम है ये मंथली मॉड्यूल्स बन रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, one particular month I will teach you only ship handling, one particular month it will be only STCW and ये क्या कहते हैं VTS and etc. ships routing and all that. One particular month will be only safety, IMSAR safety and all that. Right, तो वैसे ही इसका है अभी, क्योंकि फरवरी वाले दे आर फिनिशिंग ऑफ, और जो मुझे बताया गया था एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस और फैल कन्वेंशन, ये नहीं हुआ है आपके साथ। नोट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। बिल ऑफ ट्रेडिंग चार्टर पार्टी रिवाइज करने को बोला था मुझे विद द फेब बैच, राइट। ये जो टॉपिक है फैल कन्वेंशन का एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का, ये मैं पढ़ाता हूँ इन MEO मरीन इंजीनियर ऑफिसर्स जो क्लास 2 वाले हैं, लेकिन उनका बहुत बेसिक है, राइट। सो व्हाट आई टीच देयर इज व्हाट आई कैन टीच हियर, क्योंकि उनका एकदम बेसिक है। उनका खाली ओरल्स के रिटन्स में नहीं आता, वो भी ओरल्स में आता है, हार्डली एनीथिंग इन द रिटन्स। जो हेग रूल चार्टर पार्टी है ना, ये उनका भी है। जैसे आप लोग के लिए इंजीनियरिंग नॉलेज होता है, वैसे उन लोग के लिए भी थोड़ा सा ये चार्टर पार्टी, बिल ऑफ ट्रेडिंग, ये सब उनका भी है, बट फैल कन्वेंशन वगैरह ये सब है, बट बेसिक। मतलब 19 आवर्स 19 लेक्चर्स में मेरे सारे हो जाते हैं ख़त्म उनके साथ। हाँ, फॉर यू थोड़ा ये है, ASM में जाओगे तो ये थोड़ा और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसमें और भी ज़्यादा लिखोगे,
जो थोड़े से लिखने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि when you are appearing for master's exam, then it is expected that you will write something more than what you have written for your mates. And of course engineers के लिए तो basic होता है, जिसमें अपना नाम डाला, nationality, date of birth, place of birth, ये सब डालते हो, document number, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन एंड सेक्स, मेल, यही तो भरते हैं आप वहाँ पे अपना इमिग्रेशन में, जो फ्लाइट में आपको एक कार्ड दिया जाता है, एड्रेस, साइन। तो वैसे ही फॉर पैसेंजर्स द सेम थिंग इज डन हियर। डिसएम्बार्केशन कार्ड लिखा है यहाँ पे, एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन कार्ड। वो फ्लाइट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन 3.7 में आ गया, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑन बोर्ड द शिप, पर्सन जो उतर रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, 9 को अगर आप देखेंगे, रिकमेंड पब्लिक अथॉरिटीज should normally perform customs inspection for inbound passenger, a complete baggage inbound passengers के लिए। Public authorities 3.9.1 waive inspection of accompanied baggage for departing passengers। Incoming के लिए तो ठीक है, क्या लेके आ रहे हैं duty free। For departing passengers cannot be waived completely। Such inspection should normally be performed on a sampling or selective basis। Random मतलब। 3.10 में valid seafarer's identity document, that is your CDC, or a passport shall be the basic document for providing public authorities with the information। तो अब उसमें भी क्या चाहिए आपको, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन, आपका नाम, गिवन नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, joining a ship or getting transferred or going home, public authorities shall accept from the seafarer in place a passport, a valid seafarer's document, which guarantees the readmission of a bearer into country which has issued the document। Measures to facilitate clearance of cargo, ये भी नहीं है। क्वारंटीन वाला मैं आया चैप्टर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में नहीं। द अराइवल के टाइम पे क्या राइट, कंटेंट्स ऑफ योर क्रू लिस्ट, ये अराइवल पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डिपार्चर पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डिक्लेरेशन क्या होता है। ओके, सो दिस इज योर कार्गो डिक्लेरेशन ऑन अराइवल एंड ऑन डिपार्चर का है आपका इधर। Then this is on arrival, cargo declaration, and this is your general declaration। Yes sir, yes sir। Fifth batch, anything else? ये नोट्स में है या पेज आपका, अदरवाइज IMO.org पे रिपोर्ट किस कंपनी को, हमारी सर अपनी कंपनी। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि आपका बिल ऑफ लीडिंग चोरी हो जाता है, तो क्या करते हैं, लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया, आपको पता नहीं, खो गया, कहीं गिर गया या किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या करते हैं, अगेन ये ओरल्स का क्वेश्चन है कि आप और रिटर्न्स पे भी आ सकता है कि आप जाइए एजेंट के पास जाइए, क्योंकि शिप तो एट सी है, जो भी एजेंट है ओनर का, उसके पास जा, हाँ, ओनर का जो एजेंट है उस डिस्चार्ज पोर्ट का, उसके जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के पास, जो या वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल आल्सो हैव टू पे फॉर ऑल द जुडिशियल, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। कोर्ट आपसे शायद बैंक की गारंटी भी मांगे, और वैसे भी कोर्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और कोर्ट को अगर लगा कि हाँ आप जेन्युइन हो, तो वो क्या करेगा, आपको डिलीवरी ऑर्डर दे देगा, वो डिलीवरी ऑर्डर लेकर के फिर आप, ठीक है, और आप ये सब तभी करोगे कि जब आप जेन्युइनली उसके ओनर हो। अगर फ्रॉड करने को देखोगे तो कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं, फिर कोर्ट तो आपको नीलाम कर देगा। जुरिस्डिक्शन या लोकल कोर्ट ऑफ लॉ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू प्रूव टू देम that you are the genuine holder of the bill of lading। You will have to pay for all the judicial expenses, whatever the expenses the court says कि submit करो। Court will then give you delivery order, और वो delivery order लेकर के फिर कोई आ ही नहीं रहा है। दो सिचुएशंस है कि शिप ओनर को फ्रेट मिल गया है, तो चलो कम से कम एक झंझट तो गई, शिप ओनर को उसका फ्रेट तो मिल गया है। दूसरा है कि फ्रेट भी नहीं मिला है और कोई आ भी नहीं रहा है कार्गो क्लेम करने के लिए, जो कंसाइनी था वो बैंकरप्ट हो गया। पहले सिनेरियो में फ्रेट मिल गया है, सो यू वेट फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो यू डिस्चार्ज योर कार्गो टू अ साइलो, वेयरहाउस और टैंक, और वो बंदा जिसका कार्गो वो जब आएगा तब उसको दे दिया जाएगा। आपने कार्गो डिस्चार्ज कर दिया, सब कुछ हो गया, कोई भी नहीं आ रहा है, तो वेयरहाउस भी ज़्यादा टाइम तक उस कार्गो को नहीं रखेगा, पेरिशेबल कार्गो हो सकता है, तो वो एक नोटिस निकाल देता है न्यूज़पेपर में कि भाई ये कार्गो पड़ा है, इतने टाइम से पड़ा है, कोई नहीं आ रहा है, हम इसका ऑक्शन कर रहे हैं। बस ऑक्शन कर देगा उसका, और उसमें से जो पैसे, जो डिस्चार्जिंग कॉस्ट है वो ओनर को दे देगा, डबलेज है तो भी ओनर को चली जाएगी, और वेयर हाउसिंग की कॉस्ट वो काट लेगा, क्योंकि वेयर हाउस तो पोर्ट का है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया कि फ्रेट भी नहीं मिला है और कोई आ भी नहीं रहा है, अगेन सेम थिंग, ओनर्स को बता दो, PNI क्लब को, लोकल एजेंट को तो पता ही है, वेट फॉर अ रीजनेबल पीरियड, के बाद भी कोई नहीं आता है, इवेंचुअली दैट कार्गो will be sold by auction so that the ship owner can recover his cost। discharging cost निकाल उसको पकड़ेगा, क्योंकि शिप ओनर तो उसी को जानता है, उसने शिपर को। तो ऐसा क्यों होगी, कोई क्लेम करना नहीं आएगा? नहीं, अगर नॉट बिटवीन द शिप ओनर,
तो he will not release the cargo. Ship owner has a lien on the cargo for freight. ठीक है जी, कि कोई बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो लेट्स से ये आपका बायर है, सॉरी सेलर है, ये इंडिया में बैठा है और ये बायर है, लेट्स से ये यूके में बैठा है। सेलर अपने आप को समझ लो, आप सेलर हो, आप इंडिया में बैठे हो और आपके और बायर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। ओके, एक एग्जांपल ले ले, 50,000 टन्स ऑफ शुगर इन 50 किलोग्राम बैग्स। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडेड यू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम। अब ये तब यूज किया जाता है जब बायर और सेलर अलग अलग कंट्रीज में हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। सेलर सोचता है कि मैंने अगर गुड्स को भेज दिया, शिप कर दिया, बायर मुझे पैसा देगा या नहीं देगा। बायर सोचता है अगर मैंने इसको, तो दोनों आपस में बैंक को यूटिलाइज एंड टेक द मनी। सो लेट 50 किलोग्राम बैग्स में, लेट्स से इसकी वैल्यू है $300,000। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनवॉइस, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल बहुत अदर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्या जो भी होंगे वो बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो भी है, क्लीन बिल ऑफ लीडिंग एंड बाय 15 जून। तो ये इनमें अग्रीमेंट हुआ है। तो बायर का बैंक पहले इंडिया में, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इंडिया में जो भी, अगर उसको चार्टरिंग नहीं आती है तो वो एजेंट्स ढूंढ लेगा, जैसे जेएम बख्शी है, इंचकेप शिपिंग है, उनको बोलेगा कि भाई मेरा कार्गो एक्सपोर्ट करना है 50,000 टन, तो जेएम बख्शी जहाज चार्टर कर लेगा ऑन हिज बिहाफ। विचएवर वे, उसने जहाज को चार्टर किया, जेएम बख्शी को बोला इनवॉइस तैयार रखेगा, इनवॉइस तो खुद बनाना है, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट उसके पास होगा क्योंकि तभी एक्सपोर्ट कर सकता है वो। इंश्योरेंस सेलर क्या करेगा, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ या ब्लू से दिखा रहा हूँ, सेलर क्या करेगा जब सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ गए, बिल ऑफ लीडिंग भी आ गया, नाउ ही विल गो टू द बैंक एंड ही मस्ट गो टू द बैंक बाय दिस डेट, 15 जून तक। 15 जून तक वो इस बैंक पे गया, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया। ये जो बैंक है यहाँ पे, वो चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा और देखेगा सब ठीक ठाक है, सेलर को पेमेंट कर देगा। ठीक है, सेलर को पेमेंट हो गई, फिर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजे जाएंगे बायर्स बैंक को। बायर का बैंक क्या करेगा, अब मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, बायर का बैंक क्या करता है, उनको फिर से स्क्रूटनाइज करेगा एंड ये वाले बैंक को, जो इंडिया में जो बैंक है, उसको टुगेदर विथ हिज कमीशन, जो ओरिजिनल कॉस्ट है $3 लाख वो तो करेगा ही, प्लस बीच में जो कमीशन वमीशन जो दिया है वो भी पेमेंट करेगा और पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेगा और जब शिप आएगा तो उससे कार्गो कलेक्ट कर लेगा। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम। बैंक्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चार्टर पार्टी की कोई हमने, वो अलग चीज है। शिप ओनर हैज अ लीड। अब और इस वाले केस पे फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने अभी इसको छोटा कर दिया है, इस वाले केस बिल ऑफ लीडिंग इज स्टेल। आपने 15 जून तक करने थे, 15 जून तक आपने नहीं किया, सो योर बिल ऑफ लीडिंग इज स्टेल। आपको याद होगा टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग में मैंने कहा एक स्टेल बिल ऑफ लीडिंग होता है, एंड उस टाइम मैंने नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम नहीं किया था आज पर, तो उसने आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी दी, आपने उसको बिल ऑफ लीडिंग साइन करके दे दिया, वो तो गया बैंक में, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसने अपना पैसा ले लिया और उसने कार्गो रोक लिया। शायद ना भी रोके, जेन्युइन आदमी होगा, बट उसने कार्गो रोक लिया। आपने बिल ऑफ लीडिंग इशू कर दिया 50,000 टन का, बट आए हैं 48,000, बस शिप ओनर फंस गया, आप भी फंस गए। पीएनआई भी कवर नहीं करता है इसको, ये जो लॉस है आपने गलत लीडिंग। तो बैंक्स विल रिफ्यूज पेमेंट इफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड विद इन 15 days आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट। बिल ऑफ लीडिंग हैज टू बी सबमिटेड विद इन दैट डेट, 15 जून तक। और अगर डेट मेंशन की ही नहीं गई है, देन द बैंक विल रिफ्यूज पेमेंट to the seller if the documents are not submitted within 15 days after the date of shipment। ठीक है, और डेट ऑफ शिपमेंट क्या होती है, बिल ऑफ लीडिंग की डेट। जिस दिन बिल ऑफ लीडिंग साइन किया गया है उस दिन की डेट होती है, जिस दिन कार्गो ऑपरेशंस कंप्लीट हुए हैं, क्वांटिटी हैज बीन असर्टेन्ड। अदरवाइज वही डेट पड़ेगी जिस दिन कार्गो क्वांटिटी असर्टेन हुई है। प्लेस ऑफ इश्यू कैन बी डिफरेंट। प्लेस ऑफ इश्यू, कंसाइनी यूके में बैठा है, शिप ओनर भी यूके में बैठा है, वो कहता है कि आई विल इश्यू द बिल ऑफ लीडिंग हियर, ओनर कहता है, और कंसाइनी को दे दूंगा। सो प्लेस ऑफ इश्यू कैन बी यूके। कोई जरूरी नहीं है कि जहां लोडिंग हो रही है बिल ऑफ लीडिंग वहां इशू हो। डेट ऑफ इश्यू जरूरी है, प्लेस ऑफ इश्यू कैन बी एनीवेयर। ओके, चल यहाँ तक क्लियर है।